want to share with you about how and where we need to be in the next 12 months, our future. I want to talk in terms of our destiny. तो मैं आपसे आज सुबह के समय बात करने जा रहा हूँ आने वाले इन 12 महीनों के लिए, ये हमारे लक्ष्य के लिए जो हमारे आगे रखा है. Where you want to be in 6 months, or where you want to be in 12 months, or where you want to be in 2 years or 5 years. आप आने वाले 6 महीनों में या 12 महीने में या 2 साल या 5 साल में कहाँ किस ओर जा रहे हैं? This is a question either you have asked somebody, especially if you are a parent. I'm sure you have asked your son or your daughter or your children this question. ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सब पूछते हैं, या तुम अपने बच्चों से पूछते हैं या हम एक दूसरे से पूछते हैं. Or someone has asked you this question. या किसी ने आपसे ये प्रश्न पूछा है. Is there anybody here who has never confronted this question in life before? हम में से यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी भी इस प्रश्न को कभी जाना ही नहीं है? I'm sure all of you are familiar with this question, मैं right? जानता हूँ कि आप सब इस प्रश्न से बहुत ही ज्यादा जान पहचान रखते हैं. Something that we made sure that our children were raised up with when they were very small was we posed this question before them. ये कुछ ऐसी चीज है कि जब हमारे बच्चे छोटे ही होते हैं हम ये प्रश्न उनके सामने रखते हैं. Where do you want to be क्या- in when you finish your high school? कि आप कहाँ होना चाहते हैं जब आप अपनी 10वीं में होंगे? What are the skills that you like to learn by the time you have finished high school? कौन सी वो चीजें हैं जिसमें आप निपुण होना चाहते हैं जब आप 10वीं पूरी कर लें? And so it's a very important question. तो ये बहुत ही एक मुख्य प्रश्न है. I know some people don't like to talk about मुझे this. पता है कई लोग इसके बारे में बात ही करना नहीं चाहते Some हैं. people have an allergy to talk about future. कईयों को भविष्य के बारे में बात करो तो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है. And they will make every excuse to get out of conversations about future. और वो सारे बहाने बना देते हैं कि वो किसी तरह से भविष्य के बारे में जो बात हो रही है उससे बाहर निकल आए. But the reality is that we have to deal about our future sometime or the other. लेकिन सत्य तो ये है कि हमको कभी ना कभी अपने भविष्य के बारे में बात तो करनी पड़ेगी. Our life is taking us to some destination. हमारा जीवन जो है हमें किसी लक्ष्य की ओर ले जा रहा है. Whether you like it or not, you are going a place. चाहे आप पसंद करें या ना करें, आप किसी चीज की और किसी जगह की ओर जा रहे हैं. But you can decide which mode of transportation you want to get on board so that you can reach that destination. लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस यातायात का या कौन सा साधन लेना चाहते हैं कि आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं. Last night we had an amazing service here कल हमारे बीच में रात में बहुत एक अद्भुत आराधना का समय था where we were reflecting on Psalm 100 and looking back into the past of our life. We wanted to know what should be our और response. पिछले समय में जो भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया है हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए But है. this morning लेकिन आज सुबह we are looking ahead. We are looking to the future, हम आगे की ओर देख रहे हैं, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं where we are heading this new year. कि हम किस ओर इस नए साल में बढ़ रहे हैं. By the end of the year 2023 in December, where do we want to reach? 2023 के दिसंबर के महीने में वहां तक पहुंचने के लिए हम कहां पहुंचना चाहते हैं? Individually, व्यक्तिगत रूप में, as a family, पारिवारिक रूप में, as a church. कलीसियाई रूप में. God has some plans for us. परमेश्वर की कोई योजना है हमारे लिए. Along the way, God is going to give us some surprises. और रास्ते में जब हम चल रहे होंगे तो परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ ऐसी चीजें रखी होंगी जो हमको आश्चर्य देंगी. How many of you are ready for those God surprises? क्या आप में से कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के आश्चर्यों को देखने के लिए? Amen? As long as it is God surprises, I'm okay. जब तक वो परमेश्वर की ओर से दिए गए आश्चर्य है मैं ठीक हूँ. As a church, we have certain ideas in our mind where we want to go. कलीसियाई रूप से हमारे दिमाग में कुछ चीजें हैं कि हमें कहाँ किधर की ओर बढ़ना है. And as a church, I'm sure God is going to give us some surprises along the way as well. और मैं इस चीज के लिए बहुत निश्चिंत हूँ, मैं बिल्कुल पक्का हूँ कि कलीसियाई रूप से परमेश्वर ने हमारे लिए भी कुछ आश्चर्य रखे हैं. I want you to reflect on your life. मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के ऊपर प्रकाशन डालें. Maybe 10 years ago or 20 years ago, शायद 10 साल या 20 साल पहले you were at a New Year service like this. आप ऐसी ही एक नए साल की आराधना में थे. And I'm sure you were thinking where you would be in the year 2023. और मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं 2023 में कहां पर होऊंगा. You may have had questions like what career I'm going to choose. और आपके पास शायद
उस समय वो प्रश्न रहे होंगे कि मैं कौन सा कार्य चुनूंगा अपने लिए करने Who के will लिए, I marry? किससे मैं शादी करूंगा, Where will I settle down and live? कहाँ मैं अपने आप को स्थापित करूंगा और अपना जीवन जीऊंगा। Maybe as you surrendered your life during these past years, शायद जब आपने अपने जीवन को पिछले इन सालों में समर्पित किया होगा, God may have changed His directions for your life. शायद परमेश्वर ने आपके जीवन की दिशाओं को बदल दिया होगा। Maybe you are going in a certain direction, but God said, no, no, that's not the way I'm going to take you. This is the way I'm going to take you. शायद आप किसी दिशा की ओर जा रहे थे और परमेश्वर ने बोला नहीं, वो दिशा नहीं, मैं तुझको इस दिशा से लेकर जाऊंगा। And how many of you have those surprising turning points in the past year? आप में से कितनों के पास भूतकाल में जो पिछला साल गया ऐसे समय रहे जहां आप आश्चर्य हो गए? In my life, God has taken me to several such surprises. परमेश्वर ने मेरे जीवन में मुझे कई ऐसे चीजों से लेकर गया जहां मैं आश्चर्य में पड़ गया। When God told me to come to North India, जब परमेश्वर ने मुझे बोला कि उत्तरी भारत में आना I है, had so many questions. मेरे पास बहुत से प्रश्न थे। I don't look like North Indians. मैं एक उत्तरी भारतीय की तरह नहीं दिखता हूँ। I know wherever I go, they're going to call me Madrasi. जब भी मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो लोग मुझे मद्रासी बोलेंगे, And I'm not from Madras. लेकिन मैं मद्रास से नहीं हूँ। Even I was in a taxi yesterday, a few days ago, and the taxi guy said, "Are you a Madrasi?" और मैं पिछले दिनों में एक टैक्सी में जा रहा था, वो इंसान ने भी मुझे ऐसे ही पूछा, क्या तुम मद्रास से I हो? said, in my whole life, I only been to Madras 2 or 3 times. मैंने उनको बोला मैं अपने पूरे जीवन में ये 2 या 3 बार ही मद्रास गया You हूँ। see, it doesn't matter what I try, I'm never going to look like a Punjabi. चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एक पंजाबी की तरह नहीं दिख पाऊंगा। It doesn't matter how much Hindi or Punjabi I speak. चाहे मैं कितनी भी हिंदी बोल लूं, चाहे मैं कितनी भी पंजाबी में बात कर लूं, I'm going to remain a Malayali till I die. मैं एक मलयाली ही रहूंगा जब तक मैं मर ना जाऊं। There's nothing I can do. मैं कुछ भी कर नहीं सकता But हूं God उसके बारे said, में। go to North India. लेकिन परमेश्वर ने बोला तू उत्तरी I भारत said, में God, जा। I can't speak Hindi. मैंने परमेश्वर से बोला मैं हिंदी नहीं बोल You सकता know, हूँ। God has no surprises. परमेश्वर के पास आश्चर्य नहीं है। I'm thinking about our own church. मैं अपनी कलीसिया के बारे में सोच रहा For हूँ। how many years we struggled in that little cubby hole room in Burail. हमने कितना समय के लिए संघर्ष किया बुरेल में, उस छोटी सी जगह में। We were just talking to Christina and her brother yesterday, last night, because they just came back after many years and they're seeing this facility for the first time. They've been part of the Burail experience for many years since they were little kids. और मैं बहन नताशा से, उनके भाई से कल बात कर रहा था जब वो कलीसिया में आए थे, क्योंकि वो पुरानी जगह को जानते थे और वो नई जगह में पहली बार आए थे। मैं उनसे बता रहा था ये If you सारी wanted to बातें। go to the restroom, the whole congregation had to watch you open the door and go inside by the stage side. Remember? अगर आपको शौचालय इस्तेमाल करना था तो कलीसिया के सब लोग देख सकते थे कि आप पूरे स्टेज में चढ़कर वहां जा रहे हैं। How many of you, Natasha, you felt surprised coming here, right? मुझे पता है बहन नताशा को बड़ा ताजुब हुआ, चंबा हुआ यहाँ Yeah, आकर। this place is God's surprise gift for us. ये जगह जो है परमेश्वर का वो एक आश्चर्य, एक चमत्कार जैसा है। Moving into the future, जब हम भविष्य की ओर बढ़ रहे is हैं, there more surprises? क्या और भी आश्चर्य की बातें I'm रखी sure. हैं? हाँ, मैं बिल्कुल As पक्का a हूँ। church, we're going to see more surprises. कलीसियाई रूप से हम और भी चमत्कार और भी आश्चर्यों को देखने वाले हैं। It is very important ये बहुत जरूरी है that as we reflect back on the surprises of God and the way in which God led us in the past, ये बहुत जरूरी है कि हम पीछे मुड़कर देखें कि कैसे परमेश्वर ने आश्चर्य करे हैं पिछले that भूतकाल we में, don't become settled, कि हम बिल्कुल अपनी एक जगह में स्थापित ना कर लें अपने that we आप don't को, become complacent, कि हम बिल्कुल आलसी से ना हो जाएं, but we move forward. लेकिन हम आगे बढ़ें। Amen? What is the things that Lord has in store for वो us? कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई हैं That सुरक्षित? leads us to our test taken from Philippians chapter 3 today. वो आज हमको उस अध्याय की ओर ले जाता है जो हमने आज सुबह के समय लिया है, जो फिलिपियों की Open पत्री, your Bibles to Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय। This is an autobiographical portion of Paul's life. ये पौलुस के जीवन की एक आत्मकथा है। Paul is speaking largely about his own life. पौलुस यहाँ पर ज्यादातर मुख्य रूप से अपने जीवन के बारे में बात कर रहा है। Paul is using his own life as an example. यहाँ पे पौलुस अपने ही जीवन को इस्तेमाल कर रहा है एक उदाहरण के रूप में। I like people using their own life as an example when they teach or preach. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्रचार करते हैं या शिक्षा देते हैं, जब वो अपने ही उदाहरण को इस्तेमाल So करते in the हैं। book of Philippians chapter 3, इसलिए फिलिपियों की पत्री उसके 3रे अध्याय में he's saying who he is वो बता रहा है कि वो कौन है and where I have been, और वो कहाँ रहा है and this is where I want to go in the future. और वो भविष्य में कहाँ जाना चाहता है।
So Paul is writing about where he wants to go in the future. इसलिए पौलुस यहाँ बता रहा है कि भविष्य में वो कहाँ जाना चाहता है And he is using a metaphor to express where he wants to go in the future. और वो रूपक के रूप में ये प्रकट कर रहा है अपने आप को बता रहा है कि वो भविष्य में किस ओर जाना I चाहता don't है know whether Paul himself was an athlete, मुझे ये नहीं पता है कि वास्तविकता में पौलुस क्या कोई खिलाड़ी था but for sure Paul loved sports. लेकिन ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि पौलुस को जो है खेल पसंद थे In the then known world of Paul, equivalent of Olympics, there were the Isthmian Games. उस समय के हिसाब से और हम जो बोलते हैं ओलंपिक्स के लिए Isthmian Games. वो खेल है जो इस्तिमिन जिसको कहते हैं And so I'm sure Paul went to the Colosseum to watch this sports, marathon, race, boxing, and various sports activities. और मैं जानता हूँ कि पौलुस जो है वो खेलों को देखने जाता था और जो घूसेबाजी होती है उनको देखने जाता था And if you read 1 Timothy, 2 Timothy, और जब आप पहले तिमोथियुस या दूसरे तिमोथियुस को पढ़ते हैं he's talking about the example of a boxer or a fighter. और वहां पर वो जो मुक्केबाजी करते हैं उन लोगों के बारे में और जो लड़ते हैं उनके बारे में बताता है In 1 Corinthians and Hebrews, he talks about running the race as a sports, as a marathon runner. पैरा कुरिन्थियों में इब्रानियों में वो बताता है उस दौड़ के बारे में जो दौड़ जो करते हैं उनके बारे में He बताता है speaks about boxing like a shadow boxer, वो बताता है कि नकली जो खाली ऐसी ही मुक्केबाजी करते हैं that you don't beat the air, जो हवा में ऐसे घूसे मारते रहते but हैं a boxer will want to land his punch where it matters. लेकिन ऐसा वो घूसा ऐसा वो मुक्का जो कहीं पे जाकर लग जाए So he uses a lot of sports metaphor in his epistles. तो वो जो है बड़े खेलों के बारे में यहाँ पे रूपक के रूप में इस्तेमाल करता So है here is a verse I have preached a lot, and a verse that I really like from Paul's sports analogy. तो यहाँ पर एक पद है जो मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ जो खेल के बारे में बताती है 1 Corinthians chapter 9 verse 24. पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 पद I preached a lot from this Bible verse over the years, मैंने कई बार इस पद से प्रचार किया है but it's good to read. लेकिन ये बहुत अच्छा होगा कि हम इसे पढ़ लें It says, do you not know that those who run in a race all run, but one receive the prize? Run in such a way that you may obtain it. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही के लिए जाता है तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो So this is a classic example of how Paul uses sports analogy in his writings. तो यहाँ पर ये एक उच्च उदाहरण है जो पौलुस इस्तेमाल करता है अपनी पत्रियों में So I want to share with you about how you can reach this destiny that God has for you into the future. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो आपके भविष्य की ओर लेकर जाएगी Keys to thriving in this new year 2023 so that you can actually reach somewhere, some destiny. वो ऐसी कौन सी कुंजियां हैं जो आपको संपन्न करेंगी ताकि आप किसी तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं Philippians, go back to Philippians chapter 3. फिलिपियों की पत्री और तीसरे अध्याय की ओर जाते हैं Let's वापस read verse 10. हम 10वें पद को पढ़ते हैं Paul says, यहाँ पौलुस कहता है that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that which Christ Jesus has also laid hold of me. Brethren, I do not count myself to have apprehended. ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और इसकी मृत्यु की संपन्नता को प्राप्त करूं कि मैं किसी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका या सिद्ध हो चुका हूं पर उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने पकड़ा है हे भाइयों मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं परंतु केवल यह है कि एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलकर आगे की ओर बढ़ता जाऊं How many of you feel just from reading that portion that this man is a very well experienced man? आप में से कितने लोग इसको पढ़कर ये बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है If you asked him about anything, he will say, I've been there and done that. अगर आप इस व्यक्ति से किसी
वो बोलेगा कि मैं इसको जानता हूँ और यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। He has come a long way in his walk with God. वो परमेश्वर के साथ एक लंबी यात्रा में ऑलरेडी पहले से ही आ चुका है। When he is writing this letter, जब वो इस पत्री को लिख रहा है, it's already 30 years since he had the God encounter on the Damascus road. 30 साल हो चुके हैं जब उसने दमिश्क के मार्ग में उसके साथ परमेश्वर के साथ मुलाकात की थी। So 30 years of intimate walking with God. इसलिए 30 साल परमेश्वर के साथ एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध में। And that is not a silly matter. That is nothing to be joked about. ये कोई ऐसी चीज नहीं जो मजाक की है जिसको हम ऐसे ही खाली छोड़ दें। If you have walked spiritual life for long years, like 30 or 40 years, अगर आप अपने जीवन में आत्मिक रूप से 30 या 40 वर्ष के लिए आत्मिक यात्रा कर चुके हैं तो there is a lot you have experienced and learned. इसका मतलब आपने अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव कर लिया है और सीख लिया है। So for me personally, this is my 39th year. व्यक्तिगत रूप में मेरे जीवन के लिए ये 39 साल है मेरे लिए। Since I have given my life in this path of knowing God and pursuing God. जिस दिन से मैंने अपना जीवन इस मार्ग में चलने के लिए और परमेश्वर का पीछा करने But के Paul लिए, says, लेकिन यहाँ पौलुस कहता है, it ain't over. My experience and my walk with God is not over. मेरा अनुभव और मेरी जो चाल है परमेश्वर के साथ वो अभी खत्म नहीं हुई है। He says there is still space for me to grow. वो कहता है कि अभी भी जगह है कि मुझे और भी बढ़ना है। I still have not reached my destiny yet. मैं अभी तक भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा हूँ। I have not obtained or I have not reached that place yet. मैं अभी तक पकड़ा नहीं हूँ या वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। And Paul says, I'm not perfect. और पौलुस कहता है मैं सिद्ध नहीं हूँ। And I think that's a very good attitude to have as we begin this new year और 2023. मुझे लगता है ये बड़ा एक अच्छा स्वभाव है कि जब हम 2023 को शुरू करते हैं। Yes, we have a past. हाँ, सच में हमारे पास एक भूतकाल था। Yes, God led us amazingly in the past. सच में परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए भूतकाल में हमारे साथ Yes, we चला। have a lot of stories. हाँ, हमारे पास बहुत सी कहानियां हैं। Yes, we learned a lot. हाँ, हमने बहुत सी चीजें सीखी तो It हैं। is good to come to the presence of God and say, God, yes, I have learned much, but there is much more in you that I don't know yet. और ये बोलना अच्छा है परमेश्वर की उपस्थिति में कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे जानना है। Especially, I want to encourage the young people. विशेष करके मैं जवान लोगों को उत्साहित करना चाहता Because in हूँ, your young age, you have this tendency to think, I know it all. क्योंकि इस जवानी की उम्र में ये हमारी आदत सी होती है कि हम कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता But हूँ। you talk to any person here who is older in life, 40 or more, they will tell you, no, I'm still figuring this out. और अगर आप ये कहेंगे कि कोई हमारे बीच में जो 40 और 50 साल की उम्र है उनसे बात करेंगे तो वो यही बोल सकते हैं कि हाँ मैं इस चीज को पता लगा चुका So हूँ। if you want to reach a destiny in God, इसलिए अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, come with humility परमेश्वर के पास जो है नम्रता में आए and not as one who already have it all, और ऐसा विचार रखकर ना आए जिसके पास सब कुछ है, but with one who has space for God to do things. लेकिन ऐसे उसके साथ जिसके पास मन है परमेश्वर के काम के लिए। Amen? It's good to create space for God. ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लिए जगह बनाएं। Some of our lives are so cluttered with so many things हमारे जीवन में से कईयों के जीवन में ऐसा है कि जगह ही नहीं है, that there is no place for God. कि वहां पर परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। I think it's good to clear out all the junk out of our life. मुझे लगता है ये अच्छा होगा कि हमारे जीवन के अंदर से जितना भी कूड़ा है उन सबको हमें दूर करना है। Amen? I pray that this morning as we begin this new year, we come with an open heart. मैं चाहता हूं, मेरी प्रार्थना है कि जब हम नया साल शुरू करते हैं आज आराधना के साथ, आपका एक खुला मन हो। So the first life principle इसलिए जीवन का सबसे पहला सिद्धांत that I learned from Paul जो मैंने पौलुस से सीखा है is to never settle, कि कहीं पर अपने आप को टिका ना ले, is to never feel I have arrived, ऐसा ना सोच ले कि मैं पहुंच चुका हूं, but to realize there is a destiny, there is much more ahead of me. लेकिन ऐसा महसूस करना है कि मेरे पास आगे भी कुछ है, एक लक्ष्य है जो आगे रखा है। Be positioned for more. उस पद के लिए अपने आप को स्थापित करें जहां पर आप और पाना चाहते हैं, More of what God has in store for you. और ज्यादा उस चीज को पाने के लिए जो परमेश्वर ने रखा हुआ How है। many of you expect God to do some new things
in this new year. आप में से कितना लोग ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि परमेश्वर इस साल पे कुछ नया आपके लिए करेगा? Please don't enter into this new year thinking it's another year of going through the motions. कृपया कर इस नए साल में ऐसे ही प्रवेश ना करें ये सोचकर कि ये चल रहा है जैसे पिछले साल था वैसे ही ये साल है। Hallelujah. Have you met people who feels like they have arrived, they are perfect, there is nothing more to be done in life? आपने लोगों को देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं हम सिद्ध हैं, हम जहां पर हमें होना था वहां हम पहुंच चुके हैं। They are so perfect in everything that they will not even move a couch from the position in their living room. They are quite happy that this is the way it is. वो इतने ज्यादा सोचते हैं अपने आप में, वो सिद्ध हो चुके हैं कि अपने बैठक में चीजों को इधर से उधर भी नहीं हिलाते हैं। They are so perfect. वो इतने सिद्ध हैं, They are so sinless. वो बिल्कुल पाप रहित हैं And they feel like I'm a holy और person. वो सोचते हैं कि मैं पवित्र व्यक्ति हूँ। If you ever meet a person like that, अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात किए हैं, I can tell you it is a very painful experience dealing with such people. मैं बताता हूँ कि बड़ा ही एक दर्द भरा एक ऐसा समय होता है ऐसे लोगों से बातचीत If you करना। are a person of self-righteousness and one who feels like I have arrived at everything I need to be, अगर आप ऐसे वो व्यक्ति हैं जो आप स्वयं में इतने धार्मिक हैं या ऐसे सोचते हैं कि मैं वहां जहां पहुंचना था वहां पहुंच चुका हूं, there is a spiritual pride that comes in. एक आत्मिक घमंड है जो अंदर आ चुका है। Somebody once said like this, किसी ने ऐसा कहा है, a perfectionist is one who takes great pains जो एक सिद्ध व्यक्ति होता है वो बहुत सा बड़ा दर्द उठाता है and gives them to everybody else. और वो सब को भी बांट देता है। He takes great pain to do everything perfect, वो बहुत ज्यादा दर्द उठाता है कि वो हर चीजों को सिद्ध कर दे, but he gives that pain to everybody else around. लेकिन वो जो दर्द है वो सबको देता है। How true it is. ये कितना सच है। I'm one of those person who's speaking. मैं भी वैसा ही एक व्यक्ति हूँ जो बोल रहा हूँ। I can take great pain मैं बहुत ज्यादा एक दर्द उठा सकता and हूँ I can easily give it to people. और फिर उसके बाद में बड़ी आसानी से सबको बांट सकता हूँ। Charles Spurgeon, a great preacher, said like एक this, बड़े प्रचारक चार्ल्स स्पर्जन ने ऐसा कहा that है he met a person कि वो जब एक व्यक्ति से मुलाकात किए who is perfect. जो बिल्कुल सिद्ध था He told Pastor Charles Spurgeon that I'm a perfect man. और उस व्यक्ति ने पास्टर चार्ल्स स्पर्जन से ऐसा कहा कि मैं तो एक सिद्ध व्यक्ति हूँ। So Pastor Charles Spurgeon, being the kind of guy that he is, और पास्टर चार्ल्स स्पर्जन जिस प्रकार की वो व्यक्ति है, he took a mug of cold water from the bucket और उन्होंने बाल्टी में से ठंडे पानी का एक मग उठाया and poured it on the head of this perfect और guy. इस सिद्ध व्यक्ति के सिर के ऊपर डाल दिया And suddenly this perfect man got angry. और एकदम से जो सिद्ध व्यक्ति था वो एकदम से गुस्से में हो गया। Why did you do that? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? And he was going to punch him. और वो उसके बाद एक घूसा मारने वाला And था। Charles Spurgeon smilingly said, और जो पास्टर चार्ल्स स्पर्जन ने उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, after all, you are not perfect. कायदे में आप जो है सिद्ध व्यक्ति नहीं है। You just said you are perfect. आपने तो अभी कहा था कि आप एक But सिद्ध the व्यक्ति fact हैं। that you are angry now shows that you are not perfect. लेकिन सच्ची बात तो ये है कि आपने गुस्सा दिखाया और आप सिद्ध व्यक्ति It is नहीं है। our imperfection that inspires us to pursue something better and something ये greater. हमारे जीवन की असिद्धता है जो हमको प्रेरणा देती है, प्रेरित करती है कि हम और भी उत्तमता की ओर बढ़ते चले जाएं। You know, those people who don't like to change anything in the house, वो जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में चीजों को बदलना नहीं चाहते हैं, or they can live 40, 50 years in the same setting. वो 40 और 50 साल अपने जीवन में उसी ही जगह में वैसे ही रहना चाहते हैं। You know, because they feel, why do we need to change? This is perfectly fine the way it is. क्योंकि वो सोचते हैं कि जैसी चीजें हैं वो ठीक हैं, क्यों बदलना है इसको। You have those people in your homes, right? आपके घरों में ऐसे लोग हैं, But the people like me, लेकिन लोग जो मेरे समान हैं, every 3 months I like to move things around. हर 3 महीने में मैं चीजों को इधर से उधर हिलाता रहता हूँ। And then there are others who don't like those और changes. दूसरे ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते हैं। You are pagal, what is happening to you? आप क्या कर रहे हैं ये? You know, when you are not happy with where things are, you keep changing, you keep making those adjustments. जब आप उन चीजों से खुश नहीं होते हैं जो जैसी है, आप चीजों को बदलते रहते हैं इधर And से you उधर। can draw great satisfaction in finding better results and better outcomes. और आप बड़ा संतुष्टि पा सकते हैं और उत्तम आपका अगर परिणाम निकल आता है तो। And I want to encourage you और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ that
be content with your imperfections. आप अपनी असिद्धता से संतुष्ट रहें। It is okay to make mistakes in life ये ठीक है कि जीवन में गलतियां हो जाती हैं, because it is those mistakes that teaches you the greatest lesson in life. क्योंकि वो जीवन की गलतियां ही तो हैं जो हमारे जीवन के हमको अच्छे पाठ पढ़ाती है। Amen. Some of the biggest lesson I learned in life is from my failures. मेरे जीवन के जो मैंने बड़े-बड़े कुछ पाठ पढ़े हैं वो मेरी हार से ही मैंने सीखे But we हैं। don't stop there. लेकिन हम वहां रुक नहीं जाते हैं, We move forward. हम और आगे बढ़ते हैं I want to do better. और हम और भी अच्छा करना चाहते I हैं। want to improve on how I can preach better, मैं और बेहतर कैसे करूं अपने प्रचार में, हम उसके बारे में how I सोचते can हैं। prepare better, मैं कैसे और अच्छी उत्तम how तैयारी I करूं, can look better. मैं कैसे और अच्छा दिखूं। We should not settle where we are. हम जहां पर हैं वहां पर अपने आप को ठीक करके यहाँ पे स्थापित ना कर लें। Paul could have easily said to himself, पौलुस बड़े आराम से अपने लिए ऐसा कह सकता I था have been in this journey for 30 कि years. 30 साल के लिए मैंने ये यात्रा तो कर I've ली been है, there and done that. मैंने कर लिया है ये सब, I don't need to do more prayers. मुझे अब और प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। 30 years I preached, now it's time for me to retire. 30 साल मैंने प्रचार कर लिया और अब समय आ गया कि मैं रिटायरमेंट ले लूं। But no, लेकिन नहीं, look at verse 13. 13वां पद देखें। Look at verse 13. 13वां पद, Paul says, पौलुस कहता है, brothers and sisters, हे भाइयों, I do not consider myself yet to have taken hold of it. मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, But one thing I do, परंतु केवल ये एक काम करता हूं forgetting what is behind कि जो चीज पीछे रह गई and है straining towards what is और ahead. जो बातें आगे हैं उसकी ओर बढ़ता हूं। This is what God is calling you to do this year. यही परमेश्वर आपको बुला रहा है इस नए साल To में करने के लिए strain forward, कि आप आगे की ओर बढ़ते चले to जाएं, move forward. कि आप आगे की ओर बढ़ें। I do not myself to have arrived. मैं ऐसा नहीं सोच लूं कि मैं पहुंच चुका हूं। A growing believer or a growing Christian is never satisfied with the present state of their spirituality. एक बढ़ने वाला जो मसीही होता है वो अपनी जो वर्तमान की जो स्थिति है उसमें संतुष्ट नहीं रहता They है, want to grow deeper. वो और भी गहराई में बढ़ना They want चाहते to हैं, know deeper. वो और भी गहराई में उसको जानना They want चाहते to हैं, do more for the वो Lord. और परमेश्वर के लिए करना चाहते They हैं। always say, I want to press on. वो कहते हैं कि मैं और बढ़ना चाहता हूँ आगे। Amen. Amen. I know things are not always in our favor. मैं जानता हूँ हर चीजें हर बार हमारे पक्ष में नहीं We होंगी, have a lot of challenges. हमारे पास बहुत सी That's why चुनौतियां Paul होंगी। says, I press on. इसलिए पौलुस कहता है मैं आगे की ओर बढ़ता चाहता हूँ। I press against all odds. मैं हर प्रकार की उन विपरीत बातों से मैं उनको विरोध में आगे बढ़ता I हूँ। push the obstacles to the side. मेरी सारी जो आगे आने वाली जो मेरी आपत्तियां हैं उनको मैं एक कोने में करता हूँ। On this day, it was a very cold morning this morning. आज सुबह बहुत ही ठंडी सुबह थी, Especially when we didn't go to bed early last night. जब हम विशेषकर जब हम कल रात जल्दी नहीं गए And थे my बिस्तर में, alarm went. और मेरा अलार्म बजता रहा It was so hard to push aside my rajai. और मेरे लिए बड़ा कठिन था कि मैं अपनी रजाई को एक कोने में कर दूं, But I had to use my energy लेकिन मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना to पड़ा lift that blanket. कि मैं उस रजाई को उठा लूं। Right? Press on. आगे बढ़ते जाइए, We had to press on. हमको आगे बढ़ते जाना है। Imagine if I slip in on Sunday morning. ऐसा सोचिए कि अगर मैं रविवार की सुबह सोता ही पड़ा रहूं You all will be here in the church. और आप सब लोग आराधना में भवन में रहेंगे Pastor Jobin will be calling, Pastor James, where are you? और पास्टर जॉबिन जो है मुझे बुला रहे होंगे, कहाँ है पास्टर You जी know, आप? if we have to press on. हमको आगे बढ़ते जाना है And because we press on, और क्योंकि हम बढ़ते जाते हैं and when I get into the car, और जब मैं अपनी गाड़ी में आ जाता हूँ I have to press the horn फिर मुझे हॉर्न दबाना है because it's time to go. क्योंकि ये टाइम है, ये समय है Press कि जाना on. है, हमें आगे बढ़ना है। Turn to your neighbor and say, press on. अपने पड़ोस में देखकर बोले आगे बढ़ना है। 2023 is a year of pressing on. तो 2023 जो है आगे बढ़ने का साल है। Don't settle. जहां पर है वहीं रुकना जाए, Don't stay. वहीं रुकना जाए। Amen? Amen. Are you ready? क्या आप तैयार है? You want to reach your destiny? आपको अपनी लक्ष्य तक पहुंचना है, Press on. बढ़ते जाएं। Amen? That takes me to the second principle. ये मुझको दूसरे सिद्धांत की ओर लेकर चलती है। Don't do everything. हर चीजों को ना करें, Don't do everything.
हर चीजों को ना करें, Choose one thing to do. पहले एक चीज का चुनाव करें। To put it in medical terminology, अगर हम इसको चिकित्सक के उस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो don't be a general practitioner. आप अपने जीवन में एक आम ऐसे चिकित्सक ना बने, Become a specialist. किसी चीज में निपुण या विशेषज्ञ बने, Specialize in something. किसी चीज में अपने आप को एक विशेषज्ञ बनाए, Narrow your focus down. अपने जो केंद्र है उसको और केंद्रित कर ले। Some of us are trying to do too many things. हम में से कई लोग बहुत सा कुछ करना चाहते I हैं। want to be a drummer. मैं जो है एक ड्रमर बनना I चाहता want to हूँ, play keyboard. मैं कीबोर्ड भी बजाना I चाहता want to हूँ, play bass. मैं बेस गिटार भी I बजाना want to चाहता play हूँ, acoustic. और मैं जो हूँ अकोस्टिक भी I बजाना want to be चाहता a हूँ, I want to be a singer. मैं एक गायक भी बनना चाहता हूँ। Have you seen those guys who got the drum, the mouth organ, the guitar, and the cymbal, and they got the mic, and a one-man band? आपने देखा है एक व्यक्ति जो सब कुछ बजाता है? Have you seen those guys? आपने कभी देखा है उन व्यक्ति को? Some people are like that. कुछ ऐसे लोग होते हैं, They do so many things, jack of all trades, good for nothing. वो हर चीजों को एक साथ करते हैं लेकिन उसका कुछ अच्छा नहीं निकलता। It's good to just focus on one thing. ये अच्छा होगा कि अगर हम किसी एक चीज पर ही अपना ध्यान लगाएं। Look at verse 13. 13वां पद देखते हैं। Paul says, पौलुस कहता है, I do not count myself to have apprehended, मैं ये नहीं सोचता कि मैं पकड़ चुका हूँ, but one thing I do. लेकिन एक चीज मैं करता हूँ। Paul is saying, encouraging us to focus on one thing. यहाँ पौलुस हमको किसी एक चीज पर केंद्रित होने के लिए कहता है। Paul says, I'm going to focus on one thing this पौलुस year. कहता है कि इस साल के लिए मैं सिर्फ एक चीज पर केंद्रित For रहूंगा। 2023, let's focus on one thing. 2023 में सिर्फ एक चीज के ऊपर केंद्रित रहें। Let's change in one area of our life. अपने जीवन के किसी एक क्षेत्र में बदलने की कोशिश Let's करें। learn a skill that's going to help you to accomplish God's purpose in your life. एक चीज में अपने आप को इतना निपुण कर लें कि उस क्षेत्र में आप परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करें। The devil want to keep you so busy that you do no good at all in anything. शैतान आपको इतना व्यस्त हर चीजों में रखना चाहता है कि किसी आप एक चीज में अच्छे नहीं बन जाते। Remember the rich young ruler who came to Jesus? आपको याद है वो धनी वो अधिकारी जो यीशु के पास आया था? How can I go to heaven? कैसे मैं स्वर्ग जाऊं? And what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? There is one area. सिर्फ एक क्षेत्र है, एक There जगह is है। one area I want you to go and work on. मैं चाहता हूँ एक वो क्षेत्र है कि तुम उसके ऊपर काम करो। What is it? कौन सा वो क्षेत्र Your था? problem is money. तुम्हारी समस्या है पैसा। Sell all you have अपना जो कुछ तुम्हारे पास है उसको निवेश कर दो, and बेच give दो, it to the poor. और सारे उस गरीबों को दे One दो। area. सिर्फ एक क्षेत्र। Maybe this year God is asking us to work in the area of our generosity. शायद जीवन के इस साल में परमेश्वर उस एक क्षेत्र में हमारे जीवन में वो चाहता है कि हम काम करें, वो है उदारता। Maybe focus on cultivating a life of generosity. शायद परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर एक ऐसी आदत उत्पन्न हो जाए जहां पर हम और उदार बन जाएं। Remember the story of Mary and Martha? आपको वो कहानी याद है मरियम और मार्था की? And what did Martha love to do? मार्था ने क्या करना पसंद किया? Martha loved to serve. मार्था की इच्छा थी कि वो सेवा करे, But what does Mary like to do? लेकिन मरियम क्या कर रही थी? Mary liked to be at the foot of the Jesus. मरियम यीशु के चरणों में बैठना चाहती थी All the times. हमेशा के लिए। We will say, I'm more like Mary, or other people say, I'm more like Martha. कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे मैं मरियम के समान हूँ, तो कुछ लोग बोलेंगे मैं मार्था के समान हूँ। And do you remember what Martha complained to Jesus? और फिर आपको पता है मार्था ने क्या शिकायत करी थी मरियम के बारे में? And what did Martha, what did she say? मार्था ने क्या कहा था? Well, Mary isn't working hard. मरियम बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, She is just sitting and enjoying her life. बस ये बैठकर पर यीशु के चरणों में मजे कर रही है। And what did Jesus said? तब यीशु ने क्या कहा? You are distracted with many things. तू कई चीजों से अपने आप को हटा रखी है You अपना are ध्यान। distracted by so many other things. तूने अपना ध्यान भटका रखा है और कई चीजों से। You focus on one thing. तुम अपना केंद्र एक चीज पे रखो। And Mary has chosen that one good part, और मरियम ने अपने जीवन के लिए वो एक अच्छा भाग चुन लिया which था will not be taken away जो from उससे her. कभी भी छीना नहीं जाएगा। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया। God wants us to focus on one thing. परमेश्वर चाहता है कि हम किसी एक चीज पर अपना ध्यान लगाएं। If you are a businessman, अगर आप एक व्यवसायी हैं be a good तो businessman. एक अच्छा व्यवसायिक बने Make lots of money और बहुत सा व्यापार में बहुत सा पैसा कमाएं and give it to God's work. और परमेश्वर के कार्य को दे। God needs your money to run God's business. परमेश्वर चाहता है कि आपका पैसा इस्तेमाल किया जाए ताकि परमेश्वर का कार्य होने Are पाए। you serving God? क्या परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं? Yes. हाँ। When your money is put to God's work. जब आपका पैसा परमेश्वर के कार्यों के लिए काम आता है, In the kingdom of God, the reward goes to you just as much as the reward goes to a pastor or an evangelist. परमेश्वर के राज्य में आपका उतना ही प्रतिफल आपको मिलेगा जितना एक पासवान को मिलता है या एक सेवक को मिलता In है। Psalms 27, भजन संहिता 27 में we look at David. हम दाऊद के बारे में पढ़ते And हैं I love what David says. और मुझे बहुत पसंद है दाऊद ने जो कहा, One thing I have desired. एक चीज के लिए मैं अभिलाषा रखता One हूँ, thing I have desired of the Lord. एक वर मैंने परमेश्वर से मांगा है That I will seek after, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold his beauty. एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं परमेश्वर की मनोहरता पर ध्यान लगाऊं और नित्य उसके भवन में बना रहूं। So it is God's mandate for us to focus on one thing. इसलिए ये परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए एक योजना है, वो चाहता है कि Year हम of एक चीज पर ध्यान दें। 2023 is a year of pressing on. साल 2023 जो है आगे बढ़ने का साल है। Year 2023 is a year of focusing on one thing. साल 2023 जो है एक चीज पर अपना केंद्र लगाने का साल है And I want you to determine what that one thing is. और मैं चाहता हूँ आप उस चीज का निर्णय लें कि वो एक चीज कौन सी है। Amen? At the end of the year, इस साल के अंत में you need to be able to say, yes, I have been able to do this one thing. आप ये कहने पाएंगे कि हाँ ये एक वो चीज है जो मैं कर Don't पाया। create 7 or 8 resolutions that you cannot do. 7 और 8 चीजों का ऐसे अपने लिए इस निर्णय को ना ले जो आप कर नहीं पाएंगे, But take one resolution. लेकिन बस एक प्रतिज्ञा ले, Focus on one thing बस एक चीज पर अपना केंद्र लगा that के God रखें is putting on your जो heart. परमेश्वर आपके दिल में डाल रहा है। Another way of phrasing this is to prioritize. और दूसरा तरीका जो इसको कहने का है यह है कि प्राथमिकता देना। Narrow your focus down to the most important things in your life. अपने जीवन में जो बहुत ही मुख्य चीज है उस चीज पर केंद्र लगाना। Did you know that Dr. Billy Graham, the greatest evangelist who lived on the planet Earth, पूरे इस दुनिया में एक ऐसे मुख्य एक सेवक थे डॉक्टर बिली ग्रैहम। he was offered free land, acres of hundreds of acres of land to Billy Graham, and very rich people told Billy Graham, we will fund you starting Billy Graham University. और उनको बहुत सी एकड़ की जमीन दी गई जिसके ऊपर कई धनवानों ने उनसे ऐसा कहा कि हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आपके नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना होने पाए। 22 different opportunities came in Billy Graham's life to start Billy Graham University. डॉक्टर बिली ग्रैहम को 22 वो अवसर मिले कि वो एक बिली ग्रैहम यूनिवर्सिटी को शुरू करने पाए, But this is what his answer was. लेकिन उनका उत्तर ये था, It would be a great distraction to my preaching ministry. उन्होंने कहा कि मेरे प्रचार की सेवकाई के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुझे भटकाने वाली He चीज could have होगी। made a big name for himself. वो अपने नाम के लिए बहुत बड़ा एक नाम बना सकते Many थे। American preachers have started universities in their name. अमेरिका में कई यूनिवर्सिटी लोगों ने अपने नाम से स्थापना की है। कई प्रचारक लोग अपने नाम में यूनिवर्सिटी बनाया. Oral Robert is one of those classic example. Oral Robert University. ओरल रॉबर्ट करके जो एक यूनिवर्सिटी है वो उस व्यक्ति ने अपने नाम से स्थापना की Now there है। is nothing wrong in starting ये universities, सब चीजें गलत नहीं है कि अपने नाम से यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, but it will destroy your ministry. लेकिन वो आपकी सेवकाई को खराब कर देगी। Over the last 22 years that I lived in Chandigarh, 22 सालों में जब मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ, I had people who came to me and said, Pastor James, you should start a school. कई लोगों ने आकर मुझसे बोला, पास्टर जेम्स आप स्कूल क्यों नहीं शुरू कर देते? Many people told me.
कई लोगों ने मुझसे कहा, But I knew that I was not called to be a businessman. लेकिन मैं ये जानता था कि मैं कोई एक व्यापारी होने के लिए नहीं बुलाया गया हूं। I'm called to be a pastor. मैं एक पासवान होने के लिए I'm बुलाया called गया to हूं। be a pastor to pastors. मैं एक पासवान होने के लिए बुलाया गया हूं ताकि मैं दूसरे पासवानों तक पहुंच सकूं। And so we need to know our calling. इसलिए हमको अपनी बुलाहट जानना जरूरी है। Billy Graham said, it will be a great distraction to my preaching ministry. डॉक्टर बिली ग्राहम ने बोला, मेरी जो प्रचार की सेवकाई है, ये सब चीजें मेरे लिए एक भटकाने वाली चीज He होगी। knew that God called him to be an वो evangelist. जानते थे कि परमेश्वर ने उनको एक सेवक होने के लिए बुलाया है। And he said, let somebody else build the university. और उन्होंने बोला कि किसी और को यूनिवर्सिटी बनाने दो। He is the one thing that God calling me to do. और कौन सी ये वो एक चीज है जिसके लिए परमेश्वर मुझे बुलाया है। I urge you to keep the main thing for 2023. मैं चाहता हूँ 2023 के लिए जो मुख्य चीज है उसको आप मुख्य ही रखें। So number one, इसलिए सबसे पहले to reach your destiny, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए don't settle down, अपने आप को एक जगह पे रोक ना लें, but press forward. लेकिन आगे बढ़ें। Number two, दूसरी बात, don't do everything, हर चीजों को ना करें, but do one thing. लेकिन एक चीज को करें। And that brings me to the third principle. और वो मुझे तीसरे सिद्धांत की ओर And लेकर that चलती is है। not to look backward. और वो ये है कि पीछे की ओर ना देखें, Don't look backward, पीछे की ओर ना देखें, but move forward. लेकिन आगे की ओर बढ़ें। Look at verse 13 again. 13वां पद It दोबारा says, देखते हैं। but one thing I do, लेकिन यहाँ लिखा है, एक काम बस मैं करता हूँ forgetting what is behind कि जो पीछे रह गया है and straining forward what is ahead और of me. उसको भूलकर आगे जो मेरे लिए रखा है उस बात की ओर बढ़ता हूँ। This is taken from Paul's own eyewitness of marathon runners. ये जो लिखा गया है यहाँ पर, वो पौलुस के द्वारा जो वो अपनी आंखों से गवाह बना है देखने के लिए जो लोग दौड़ रहे हैं। If you see this marathon, the sports runners, the Africans are the best runners in the world. अगर आप देखेंगे जो दौड़ में लोग दौड़ते हैं, विशेष करके अफ्रीकी जो लोग होते हैं, Their eyes are set on the finishing line. उनकी आंखें जो है बिल्कुल आखिरी उस लक्ष्य पे पहुंचने में लगी रहती You है। will never find on the track those who are running the race looking backward. आप में से किसी को नहीं देखेंगे जो लोग दौड़ रहे होते हैं वो पीछे की ओर मुड़कर देख रहे होते हैं। They're constantly looking ahead. वो बिल्कुल लगातार आगे की ओर ही देखते रहते हैं। As they come near और जैसे ही वो पास आने the लगते हैं final few moments, और बस वो आखिरी कुछ क्षण बचे होते there are हैं 4 or 5 guys, और 4 और 5 लोग दौड़ रहे होते but हैं, there's only one guy who wins. लेकिन एक ही वो व्यक्ति होता है जो जीतता But है। do you know who that guy is? लेकिन आपको पता है वो कौन व्यक्ति होता The है? one who pushed the extra few inches and just pressed in to the last minute to touch the rim. वो व्यक्ति होता है जो थोड़ी ज्यादा कोशिश कर लेता है कुछ मिनटों से या सेकंडों से आगे He पहुंचने के लिए। strained himself. वो उसने थोड़ी ज्यादा प्रयास कर लिया है। Hallelujah. This year, ये साल stop looking backward, रोक लें अपने आप को पीछे की ओर but देखने से, strain towards the future. आगे की ओर प्रयत्न करें कि किसी तरह से पहुंचना है Amen. भविष्य में। Strain towards the future. प्रयत्न करें आगे बढ़ने के Make लिए। every day count. हर दिन को अपने जीवन के लिए मुख्य बनाएं। Amen. Make every day count. हर दिन को विशेष बनाएं। There are some even so-called Christians, Christian believers or people of God. कई ऐसे लोग हैं, ऐसी जो नामधारी हैं, ऐसे परमेश्वर के जो लोग हैं, They have become spiritually crippled. वो आत्मिक रूप से बिल्कुल अपाइज हो चुके हैं। They have become crippled by past hurts. वो पिछले भूतकाल की जो उन्हें चोटें मिली है उससे दुर्बल हो चुके हैं। Bitterness have filled their hearts. कड़वाहट उनके दिल में भर चुकी है। Grudges in their minds. उनके दिमाग में जो है एक कड़वाहट सी है And it's like heavy weights put on you. You cannot move forward. और ऐसा भारी वजन है जो उनके ऊपर डाल दिया गया है कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। If I think of the person whoever in biblical history who let go of the past. अगर मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचूं जिसने बाइबल के इतिहास में पीछे छोड़ दी वो चीजें And strain towards the future. और प्रयत्न किया कि वो आगे भविष्य की ओर बढ़े, He is found in the Old Testament. हम उसके बारे में पुराने नियम में पढ़ते हैं। His name is Joseph. उसका नाम यूसुफ था। Remember Joseph? आपको याद है यूसुफ? He was hurt by his brothers. वो अपने भाइयों के द्वारा चोट पहुंचाया He गया था। could easily have had a grudge in his heart वो अपने दिल में बहुत बड़ी कड़वाहट रख सकता था because he was imprisoned for many years. क्योंकि वो कई समय के लिए बंदी बना दिया गया था And there was no scope for him. और कोई ऐसी
गुंजाइश नहीं थी। But if you read Genesis chapter 50 लेकिन जब आप उत्पत्ति के 50वें अध्याय को and you पढ़ते read हैं verse 20, और 20वें पद को पढ़ते हैं end of his life, और अपने जीवन के उस अंत में this is what Joseph says. यहाँ यूसुफ ऐसा कहता है। Genesis chapter 50 verse 20. उत्पत्ति का 50वां अध्याय उसका 20वां पद, As for you, तुम लोगों ने you meant this for evil against me, तुमने मेरे लिए ये बुरा विचार किया था, but God meant it for good, लेकिन परमेश्वर ने ये मेरे लिए भलाई के लिए ही to रखा था, save many people alive, ताकि वो कई लोगों के जीवन को, प्राणों को बचा सके, as it is this day. जैसे ये आज के दिन में प्रकट है। Hallelujah. My dear friends, our failures of the past, our hurts and grudges of the past must be a stepping stone for God to do great and mighty things. मित्रों, हमारे जीवन में हमारी जो हार है, कमजोरियां हैं, जो हमारी कड़वाहट है, वो एक ऐसा पत्थर बनना चाहिए जो हमको मदद करे इस साल में परमेश्वर के द्वारा और बड़े काम को करने के लिए। Everything that could have become grudge in his heart, हर वो चीजें जो उसके जीवन में कड़वाहट बन सकती थी, he let it go. उसने उन सब चीजों को छोड़ दिया। Let go of your grudges. अपनी सारी कड़वाहट को छोड़ दे, Let go of your bitterness. अपनी सारी जो आपके अंदर की जो ईर्ष्या है उसको छोड़ दे, Let go of all the hurts हर वो चोटें जो आपको मिली है उसको छोड़ दे and embrace the future. और अपने भविष्य को अपने से लगा ले। Amen? We're going to let it go. हम 2022 को पीछे छोड़ने जा There's रहे no हैं। point in living in 2022 again. दोबारा से 2022 में जीने से कुछ मतलब नहीं है। 2022 is over. 2022 खत्म हो चुका What do है। we have in front of अब us? हमारे आगे क्या रखा है? A new year, एक नया साल, a new beginning, एक नई शुरुआत, new things एक नई आने वाले that अच्छे God दिन wants to do for and through us. जो परमेश्वर हमारे द्वारा और हमारे लिए करना चाहता है। Don't let the past determine and dominate your present. अनुमति ना दें कि आपका भूतकाल आपके ऊपर प्रभाव डाले या That आपके put ऊपर a strong hold on your throat and choke you. या वो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाले और आपको घुटन महसूस करें आप इस 2023 में। Look at verse 13 once again. 13वें पद को दोबारा से देखते हैं। Forgetting what is behind उन सब चीजों को छोड़कर जो पीछे रह गई and है, straining toward what is ahead. लेकिन आगे जो बातें हैं उसकी ओर बढ़ना है। The word reaching or straining and reaching in Greek means every possible muscles that could be used is being used. और यहाँ पर कहने की बात यह है कि पीछे छोड़ देने, आगे बढ़ने की बात यह है, यहाँ यूनानी मतलब यह है कि अपनी सारी ताकत, अपनी सारी मांसपेशियों को लगा देना, Strain to the limit. आगे बढ़ने के लिए। And if you work in the gym and if you go to gym and start working out, और अगर आप कसरत करने के लिए जिम में जाते हैं तो, which I started doing it again now, जो मैंने अब दोबारा से करना शुरू कर दिया है, you can actually trick your muscles. आप अपनी जो मांसपेशियां उसको कभी-कभी आप मुड़वा सकते हैं। If you want to actually lift a 20 kilo weight on अगर- your biceps, अगर आप अपने हाथ से 20 किलो वजन उठाते हैं तो if you just go to the gym and pick up the 20 kilo, you will not do it. आप जो है ऐसे ही जाकर जिम में घुसकर 20 किलो नहीं उठा सकते हैं, But you start with 10, लेकिन आप 10 किलो से शुरू करते हैं right? You do few reps or tens, और आप फिर धीरे-धीरे 10 बार उसको उठाते हैं and then you pick up another weight. और फिर उसके बाद आप दूसरी तरह से वजन उठाते You हैं pick up 15 kilo. और फिर आप धीरे से 15 किलो Few उठाते हैं reps, oh, you can do 15 now, और फिर आप धीरे-धीरे उसको 15 बार उठा लेते right? हैं And within few minutes, और कुछ मिनटों में you will find yourself picking up the 20 kilo weight. आपको महसूस होने लगेगा कि आप 20 किलो उठा पा रहे हैं And then of course you strain और फिर हाँ आपको बहुत ज्यादा ताकत because लगती in है your mind you're determined to do 20. क्योंकि आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कि आप 20 बार करना And चाहते हैं every possible muscle is being used और हर संभवता जो आपकी मांसपेशियां हैं आप उसको इस्तेमाल करते हैं till you lift that 20 kilo. जब तक आप वो 20 किलो ना उठा लें। That is exactly what Paul is saying. यहाँ here. पौलुस वही बात कहता है, If you want to reach your destiny, अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते you have to हैं, begin with those baby steps. आपको धीरे धीरे उस बच्चों के समान उस कदमों को उठाना You're going है, to take those initial steps, आपको वो शुरुआती कदमों को उठाना है, increase the pace, अब वो आपको फिर अपनी धीरे धीरे अपनी जो है आपको
अपनी गति बढ़ानी है, do more, फिर और करना है, work harder, और भी कसरत करनी है, improve harder, और भी अच्छे से do a little bit more better than what you did last time. जो पिछली बार आपने किया था उससे ज्यादा अच्छा करना है। Receive the criticism that people will bring along the way. जो रास्ते में आपके लोग आलोचना ही करेंगे उसको भी लेना है। If people are advising you, अगर लोग आपको सलाह देते हैं तो welcome those उस advices सलाहों को ले लें so that you can improve better. ताकि आप और भी अच्छे बन जाएं। Amen. Are you following me today? क्या आप आज मेरे को सुन रहे हैं? That brings me to the fourth and final principle. ये मुझको आखिरी और चौथे सिद्धांत की ओर लेकर चलता है। Verse 15. 15वां पद। Paul says, therefore, let us, as many us who are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal this even to you. Nevertheless, to the degree that we have already obtained, let us walk by the same rule, let us be of the same mind. हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। Now, when you read these verses, this last verse, और verse जब आप इस 15, आखिरी पद जो पद 15 है उसको पढ़ते हैं, you will see some linguistic change from the beginning of this chapter to the latter part of this आप book. देखेंगे कि शुरुआती जो पद है और जो आखिरी पद है उसमें थोड़ी भाषा बदल रही है। Beginning of this book, शुरुआत में इस किताब में Paul is talking about himself. पौलुस अपने बारे में बात करता है, Paul is talking about his own life. पौलुस अपने जीवन के बारे में बात करता है। But now, लेकिन अब he is talking about us. वो हमारे बारे में बात कर रहा He है, is talking about the body of Christ. वो मसीह की देह के बारे में बात कर रहा है। What he is encouraging us वो हमें उत्साहित कर रहा है is that we don't walk this walk alone, कि हम इस चाल को जो हम चल रहे हैं वो अकेले ना चलें, but we walk hand in hand. लेकिन हम हाथ पकड़ कर चलें, We walk together. हम एक साथ चलें। You want to reach your destiny? आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं? Christian life is not a solo race. मसीही जो यात्रा है वो अकेले चलने वाली यात्रा नहीं है, It is a group race. ये एक अकेली दौड़ नहीं है, There are लेकिन other brothers and sisters in this journey हम एक झुंड में होकर हम एक भाई that we बहनों can के साथ travel together. जिसके साथ हम यात्रा कर सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। So Paul is not talking just about himself. लेकिन पौलुस बस यहाँ पर अपने ही बारे में बात नहीं कर रहा है। In the beginning, शुरुआत में Paul was saying, yes, this is who I am. I am Paul. This is what I used to be. पौलुस यहाँ पे बताता है शुरुआत में कि मैं पौलुस हूँ, मैं ऐसा करता था, I made these choices. ये चुनाव मैंने किए थे, This is what I have done. ये सब चीजों को मैंने किया है। But now, लेकिन अब I want to do this. मैं इसको करना चाहता And I हूँ want to know Christ. कि मैं मसीह को जानना And चाहता I want to हूँ, press and I want to reach forward. कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे की ओर उस लक्ष्य की ओर जाना But चाहता to do हूँ। this, लेकिन उसको करने के he लिए changes the gear. वो अपने गियर को बदल देता है, And he says, now there is a collective effort. और अब वो ये कहता है कि ये सबका मिलकर एक कार्य है जो करना है। And so what Paul is calling us for 2023, इसलिए पौलुस हमको इस साल 2023 के लिए किस चीज के लिए the बुलाता है? choice is yours. चुनाव आपका है। Don't isolate yourself. अपने आप को एकाग्र ना कर दें। Turn to your neighbor and say, don't isolate yourself. अपने पड़ोस में देखकर बोले अपने आप को अकेला ना कर दें। If you say, I have no friends, अगर आप ऐसा कहते हैं कि आपका कोई मित्र नहीं है, it is your fault ये आपकी गलती है, because you isolated yourself. क्योंकि आपने अपने आप को अकेला कर दिया। The more you are able to invest in others and spend time with others and walk the journey with others, you will find friends. जितना ज्यादा आप लोगों के साथ समय बिताएंगे, उनके साथ यात्रा करेंगे, आप और भी मित्र बनाएंगे। And I pray and I hope that here at Life Bridge, we are friends. और मैं ये आशा करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि हम इस लाइफ ब्रिज कलीसिया में सब मित्र होंगे। Why we come together? हम क्यों आते हैं एक Why do साथ? we sing together? हम एक साथ क्यों गाते हैं? Why do we pray together? हम एक साथ क्यों प्रार्थना Why do करते we हैं? study the scripture together? हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन एक साथ क्यों करते हैं? Why? क्यों? So that we can grow together. ताकि हम एक साथ बढ़ने पाएं, So we can learn from one another. ताकि हम एक दूसरे से सीखने When पाएं। I see a brother or a sister worshiping the Lord, जब मैं एक भाई या बहन को आराधना करते हुए देखता हूँ, when I see the faith of a person getting healed, और जब मैं उस विश्वास को देखता हूँ कि कोई व्यक्ति बीमारी से चंगाई पाता है, I'm built up in my heart. मैं अपने दिल में और मजबूत हो जाता हूँ। That's why we come together. इसीलिए हम एक साथ आते So हैं। this is a journey together. इसलिए ये यात्रा एक साथ चलने की है। Once again, I
use the example of gym and workout and exercise. एक बार फिर से मैं उदाहरण इस्तेमाल करता हूँ जिम का, कसरत करने का। If you go to gym, अगर आप जिम में जाएंगे, it is so funny that even the most strangest guy can become your friend in the gym. ये बड़ा मजाकिया है सोचने के लिए कि जो व्यक्ति आपके लिए विचित्र है, आप उसके साथ भी मित्र बन जाते हैं। Imagine you are doing some weights, ऐसा सोचिए कि आप वजन उठा रहे हैं but suddenly a stranger guy comes and he also wants to do the same weight. और एकदम से वो अनजाना व्यक्ति आता है और उसको भी वही वजन उठाना है। What does he do? वो क्या करता है? He will wait for you and he will watch you. वो वहां रुकेगा और वो आपको देखेगा। And then you get confidence, hey, this guy is watching me, so I have to do now. और फिर आपके अंदर हियाव आ जाता है कि ये व्यक्ति मुझको देख रहा है, मुझे करना है। And if you make a mistake, he will come and, do you need my help? और अगर आप गलती कर रहे होते हैं तो वो व्यक्ति आकर बोलता है आपको मेरी सहायता चाहिए क्या? Right? And all of a sudden, you find the strange guy that you never met, your buddies working out together. और आप देखेंगे कि ये जो अनजाना व्यक्ति था एकदम से आपका मित्र बनने लगा है। And you tend to do better and you tend to work out better when you have a workout partner. और आप और अच्छा कर लेते हैं अगर आपके साथ में कसरत करने के लिए कोई एक साथी It है। is the same in our spiritual journey. ऐसा ही हमारी आत्मिक जीवन में भी यात्रा में होता है। We were all strangers. हम अनजाने थे। One fine day, some of you walked into this room. एक अच्छे दिन में आप में से कुछ लोग इस कमरे में अंदर प्रवेश करे। But now, after 3, 4, 5, 6 years, we became family. लेकिन अब जो है 3, 4, 6 सालों में हम एक परिवार बन गए हैं। We didn't come from the same family. हम एक परिवार से तो नहीं आए We थे। don't speak the same हम language. सब एक भाषा तो नहीं We बोलते have हैं। different cultures. हम सबकी अलग-अलग But संस्कृतियां because हैं। of Jesus लेकिन यीशु के and कारण because of what He has done in us, और उसने जो हमारे लिए किया है, we have become family. हम एक परिवार बन गए हैं। Hallelujah. I thank God. I look forward to every Sunday. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और हर रविवार को देखने के लिए मेरी आंखें लगी Do रहती you हैं। know that Sunday is the best day of my life? आपको पता है रविवार का दिन मेरे जीवन का सबसे उत्तम दिन है। I pray that Sunday is the best day of your life. और मेरी ये प्रार्थना है कि रविवार का दिन आपके जीवन के लिए भी सबसे उत्तम बन I जाए। pray that you look forward every Sunday this year. और मेरी ये प्रार्थना है कि इस साल के हर रविवार की ओर आप देखेंगे। So much so you get your clothes ready on Friday. इतना ज्यादा कि आप शुक्रवार में ही अपने कपड़ों को तैयार कर लेंगे। We're coming to see the King of Kings. हम यहाँ पर राजाओं के राजा को देखने आते We're हैं। coming to celebrate Jesus. हम यीशु को मनाने के लिए यहाँ आते हैं। To do Punjabi Bhangra at a wedding, we dress the best. और हम पंजाबी शादियों में भंगड़ा करने के लिए अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। Yes? Why not in the house of God? परमेश्वर के भवन में क्यों नहीं? Why don't we come with the best clothes we हम have? सबसे उत्तम कपड़ों में क्यों नहीं आते जो हमारे पास है? Amen? Amen. Let's prepare ourselves आइए अपने आप को तैयार करें for this community life, इस सामूहिक आराधना for के, this family life. इस पारिवारिक जीवन के। Amen? Listen carefully. ध्यान से सुने। If you are off the track, अगर आप रास्ते से हट गए if हैं, you go here and there, आप इधर-उधर अगर जा रहे हैं, and if you have no destiny in your और mind, अगर आपके दिमाग में लक्ष्य नहीं है, and many times in Christian life that can happen, कई बार मसीह जीवन में ऐसा हो सकता है। we get off the track, हम बिल्कुल रास्ते से बाहर चले जाते and हैं sometimes we forget our destiny. और हम भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या था। What happens? फिर क्या होता है? We go from becoming participants to becoming simply spectators. और बस हम ऐसे बन जाते हैं कि कोई अभिभावक है जो बैठ जाते हैं और बस देखते रहते हैं। This life that we are not doing, not just a Sunday morning participation or a spectatorship, but it is a participation 24/7. ये जीवन जो हमारा है कलीसिया में वो सिर्फ रविवार के लिए नहीं है, लेकिन हम मिलकर इस जीवन को एक साथ बिताते हैं। Hallelujah. God wants us to participate परमेश्वर चाहता है कि हम भागीदारी लें in His mission उसके मिशन में of saving the souls. कि हम लोगों को प्राणों को बचा And those who सके। are going off the track, और bring जो them back on the track. जो रास्ते से इधर-उधर हट रहे हैं उनको वापस रास्ते में लाने Pray के for लिए, one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, Prophesy over one एक another. दूसरे के ऊपर भविष्यवाणियां देने के Stand लिए, up and preach the word of God. खड़े होकर प्रचार करने के लिए, Open your houses to midweek prayers. अपने घरों को खोलें ताकि आप मध्य हफ्तों में अपने घर में When आराधना you go करा to work सकें। in the school or university or factory, wherever you go, tell people about Jesus. जहाँ कहीं भी आप अपने कार्यों के लिए जाते हैं, अपने कार्यों के स्थानों में यीशु के बारे On में Sunday लोगों को morning, बताएं। bring them to church. संडे रविवार में उन लोगों को
कलीसिया में लेकर and आए see those people accept Jesus Christ. और देखें कि कैसे वो लोग यीशु को स्वीकार करते See हैं। those people take water baptism. देखिए उन लोगों को कैसे वो पानी का बपतिस्मा लेते See हैं। with your eyes your spiritual children grow in the grace of God. देखिए उन आत्मिक बच्चों को कि आपके आंखों के सामने कैसे बढ़ रहे हैं And प्रभु it is में। a corporate work that we do together as a church और ये family. एक सामूहिक एक कार्य है जो कलीसियाई रूप से हम पारिवारिक रूप से करते हैं। Your job तो इसलिए आपका कार्य ये है is to see that those sitting next to you are also growing in the grace कि of God. आपके जो आसपास बैठे लोग हैं वो भी प्रभु में बढ़ रहे हैं। Moving into this year 2023. इस नए साल जो 2023 है उसमें बढ़ने के लिए Number one thing to keep in mind. सबसे पहली चीज जो हमको अपने दिमाग में रखनी है, Think of progression. आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए सोचें। Don't become stagnant. एक जगह रुक ना जाएं। I'm not talking about perfection, मैं सिद्धता के बारे में बात नहीं कर रहा but हूँ, I'm talking about progress. मैं बात कर रहा हूँ उन्नति पाने के लिए। Nobody is asking you to be perfect. आप में से किसी को भी ये नहीं बोला जा रहा है कि आप सिद्ध बन जाएं। Paul is saying, I'm not perfect after 30 years. पौलुस 30 साल के बाद कहता है मैं सिद्ध नहीं हूँ। I want you to think progress. वो चाहता है, मैं चाहता हूँ कि आप उन्नति के बारे में Will सोचें। you commit to progress this year? क्या आप इस साल में समर्पित करेंगे अपने आप को कि आप उन्नति पाएंगे? Physically, शारीरिक रूप से, personally, व्यक्तिगत रूप से, emotionally, भावनात्मक रूप से, spiritually. आत्मिक रूप से। How many of you will say, आप में से कितने लोग कहेंगे I want to make progress? मैं उन्नति करना चाहता हूँ? Amen? Let other people stay. I want to go forward. चाहे लोग जहाँ पर है वो वही रहे, मैं आगे बढ़ना चाहता Number हूँ। 2, दूसरी बात, think about the future. भविष्य के बारे में सोचें, Not about your past. अपने भूतकाल के बारे में ना सोचें। Past, for whatever reason it is, जो चीज भूतकाल के लिए थी, जो भी क्या कारण के कारण था, good or bad, चाहे वो अच्छा था चाहे बुरा था, let it go. उसको जाने दे। Amen? And finally, और आखिरी में think of this journey together. इस यात्रा के बारे में एक साथ मिलकर सोचें That I cannot do this on my own. कि मैं अकेले से ये नहीं कर सकता, That we need one another. कि हमको एक दूसरे की जरूरत And we है have each other. और हमारे पास एक दूसरे